یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبری رسول بزرگ اکرام، بزرگوں، پیاری بچوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چشم، کیا بات ہے رضا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، اللہ ان بچوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، ان بچوں کو اچھا ہنر، اچھا علم عطا فرمائے، ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم حضرات، شاعر کہتا ہے
اور کیا اچھا انداز میں کہتا ہے، آ گئے نا الگ کر دو نہیں بہت ڈسٹرب شولوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، شولوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، حضرت بلال کی ادا سنت کریں گے ہم، ایسا بہت ہو شولوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، حضرت بلال کی ادا سنت کریں گے ہم، اے آسموں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، اے آسموں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب گنبد خضرا کی زیارت کریں گے ہم، جب گنبد خضرا کی زیارت کریں گے ہم۔ محترم حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے ہیں، اپنے دل کے ارمان کو جو وہ آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نعت ہے کیا؟ یہ میلاد ہے کیا؟ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مریدوں نے پوچھا، حضور اگر دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور اگر دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی اچھے قاری قرآن سے قرآن کی تلاوت سننا چاہیے اور کسی اچھے نعت خواں سے نبی کی نعت سننی چاہیے، دلوں میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا۔ اور نعت یہ دیوانوں کے دل کی بات ہے، نعت نبی کے چاہنے والوں کے دل کے تمام باتیں ہیں، یہ نعت محبت رسول ہے۔ آپ کہو گے مولانا نعت سے ملتا کیا ہے، نعت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو محترم حضرات، اعظم گڑھ کے گھوسی محلے میں ایک شاعر تھے جنہیں دنیا مزتر اعظمی کے نام سے جانتی تھی، نبی کی نعتیں پڑھتے تھے، نبی کا نام لیا کرتے تھے، نبی کی محبت میں ہمیشہ ڈوب کر نعتیں پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ اشعار کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے خبر دیا کہ حاجیوں کا جھرمٹ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، آپ سنتے ہیں، آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، وہاں نبی کی نعت پڑھتے ہیں، وہاں نبی کی نعت پڑھتے ہیں، آقا کریم کی محبت میں جو ہے اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو نبی کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ حاجیوں نے کہا اے مستر اعظمی، تمہارے رونے کو دیکھ کر جو ہے، تمہاری بے چینی کو دیکھ کر جو ہے، تمہارے بے قراری کو دیکھ کر جو ہے، تمہارے بے تابی کو دیکھ کر جو ہے میں یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں حج کرنے کے لیے نہ جاتا، اپنے در پہ تجھے بھیج دیتا، لیکن یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بتاؤ نبی کی بارگاہ میں جو ہے کیا کوئی پیغام کہنا چاہتے ہو، کیا کوئی سندیش کہنا چاہتے ہو؟ تو مستر اعظمی نے کہا تھا جب میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو عریضہ پیش کر دینا، یا رسول اللہ آپ کا ایک چاہنے والا ہے، آپ کا ایک ماننے والا ہے جو ہندوستان میں ہے، ضلع اعظم گڑھ میں ہے، محلہ گھوسی میں ہے، وہیں سے آپ کی نعتیں پڑھتا ہے، وہ آپ کے در پہ آنا چاہتا ہے اور آپ کے در پہ جو ہے آ کر نعت پڑھنا چاہتا ہے، اور جب نعت پڑھ لے تو آپ کے در پہ مرنا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے آپ کے شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اس عاشق کی تمنا ہے، اس دیوانے کی تمنا ہے، آپ کے در پہ آ کے نعت پڑھنا چاہتا ہے، آپ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے۔ نعت تو دل کی آواز کا نام ہے، بڑا غریب شاعر تھا، میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ 6 مہینے بعد عمرے کے ٹکٹ کا انتظام ہو گیا، اور جب عمرے کے ٹکٹ کا انتظام ہو گیا تو شہر مدینہ پہنچے نعت پڑھنے کے لیے، اور آقا کے روضے کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں۔ گھوسی میں رہ کر کیا تمنا کیا تھا، آقا کے در پہ نعت پڑھوں اور نعت پڑھنے کے بعد وہی میرا انتقال ہو جائے، اور جب لوگ دروازے سے نکلے تو کہیں کس خوش نصیب کا لاشا پڑا ہوا، کس خوش نصیب کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ مستر اعظمی کی یہ تمنا تھی،
میرے نبی نے قبول فرما لیا. آقا کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں, نعت پاک پڑھ رہے ہیں, نعت رسول پڑھ رہے ہیں, نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں, آقا کی نعت پڑھتے جا رہے ہیں, آقا کی نعت پڑھتے جا رہے ہیں, آقا کی نعت پڑھتے جا رہے ہیں, نبی کی محبت میں مچلتے جا رہے ہیں, نبی کی محبت کرتے جا رہے ہیں. ارے نعت پڑھتے پڑھتے جو ہے مستر آزمی کا دم نکل جاتا ہے, وہی انتقال کر جاتے ہیں. ان کا لاشا رکھا ہوا ہے جو وہ کہا کرتے تھے کوسی محلہ میں. آج وہ مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں ارے یہ کس خوش نصیب کا لاشا ہے جو شہر مدینہ کے گلیوں میں رکھا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مستر اعظمی جو وہاں کہہ رہے تھے اب وہاں کہا جا رہا ہے کس خوش نصیب کا لاشا ہے جو شہر مدینہ کی گلیوں میں رکھا ہوا ہے. وہ شعر کیا تھے جو مستر اعظمی نے پڑھا تھا؟ وہ اشعار کیا تھے جو میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو میرے آقا نے اپنے در پہ بلا دیا؟ وہ اشعار کیا تھے سننا چاہیں گے آپ سبحان اللہ بولیں گے نا؟ نہیں بولیں گے؟ سبحان اللہ بولیں گے؟ مستر اعظمی نے کہا تھا اے مولا, اے آقا, اس اشعار کے سچے طفیل ہم سب کی بھی حاضری مدینہ منورہ میں ہوتا ہے. ہم لوگ کا بھی عمرے کے ٹکٹ کے انتظام ہو جائے. مستر اعظمی نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول. کیا کہا تھا؟ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول, یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول. کب تک کہوں میں مدینہ مدینہ میرے رسول. یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول, کب تک کہوں مدینہ مدینہ میرے رسول. اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر, اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر, کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول. اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر, کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول. یہ وہی مدینہ ہے محترم حضرات جہاں جانے کے لیے ہر مسلمان پریشان رہتا ہے, ہر نبی کا چاہنے والا پریشان رہتا ہے, ہر نبی کا ماننے والا پریشان رہتا ہے. اسی مدینے کو چھوڑ کر جو ہے حسین ابن علی جا رہے ہیں, اسی مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر جو ہے حسین ابن علی جا رہے ہیں, مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر جو ہے حسین ابن علی جا رہے ہیں. ارے حسین ابن علی جا کیوں رہے ہیں, حسین ابن علی جا کیوں رہے ہیں؟ تو شاعر محترم حضرات اپنے زبان پہ یوں کہتا ہے, اپنے طرف سے یوں کہتا ہے, اپنے اشعار کو یوں بیان کرتا ہے, اپنی باتوں کو یوں بیان کرتا ہے. محترم حضرات شاعر یہ کہتا ہے حق نبھانا حق نبھانا میرے حسین کا ہے, حق نبھانا میرے حسین کا ہے, حق نبھانا میرے حسین کا ہے, حق نبھانا ہر زمانہ میرے حسین کا حق نبھانا. یا رسول اللہ زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے, جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے. چاہنے والے نا جس حسین کی محبت میں آپ آئے ہیں, شاعر کہتا ہے جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے, 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 وہ گھرانہ میرے حسین کا, وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے,
दाना दाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिसके खातिर ये कायनात बनी, जिसके खातिर ये कायनात बनी, वो मालिको मौला, वो रब्बे कायनात, जिसने जमीन को बनाया, आसमानों को बनाया, सारी कायनात को बनाया, इंसान को बनाया, जिन्नात को बनाया, पेड़ों को पैदा किया, हैवानात को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा, चरिंद परिंद सारी कायनात को पैदा किया। अरे वो मालिको मौला जो सारे सृष्टि का रचयिता है, वो मालिको मौला जो सारे कायनात को पैदा करने वाला है, वो मालिको मौला जिसे किसी ने पैदा नहीं किया है बल्कि उसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसका ना तो कोई बाप है, जिसका ना तो कोई माँ है, जिसका ना तो कोई भाई है, जिसका ना तो कोई बेटा है, जो सारी कायनात से तने तरह है, जो हर शय पे कादिर है, इसने सबको पैदा किया, लेकिन उसने किसी को पैदा नहीं किया। जब उस मौला ने चाहा कि लोग मुझे पहचाने, जब उस मौला ने चाहा कि लोग मेरे लिए सजदा करें, जब उस मालिक को मौला ने चाहा लोग मुझसे मांगे, उसने अपने महबूब को पैदा फरमाया और महबूब से कहा, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात को बनाता ही। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मुराद न होता, आपको पैदा करना मकसद न होता तो मैं इस कायनात को पैदा भी करता। और कायनात क्या चीज है? अगर आपको पैदा करना मकसद न होता तो मैं कुछ पैदा ही ना करता। तो शायर कहता है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, जिनके खातिर ये कायनात बनी, 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 ऐसे नाना मेरे हुसैन का है, ऐसे नाना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, ये जमाना मेरे हुसैन का है। आसमां जिसको लोग कहते हैं, 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 सामियाना मेरे हुसैन का, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और बेटे के माल, बाप के माल पे तो बेटे का हक होता है। बाप जहां पैदा हो वही तो बेटे का असली घर हुआ करता है। हम इंडियन बाई चाइल्ड भी हैं, इंडियन बाई चॉइस भी हैं। हमने इंडिया में रहने को पसंद भी किया और जब हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो सबसे पहले हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए। तो हम इंडियन बाई चाइल्ड भी हैं, इंडियन बाई चॉइस भी। और पूरी कायनात में सबकी शान अलग, सबका मकाम अलग, सबका मर्तबा अलग, लेकिन मौलाए कायनात की शान सबसे अलग। जो पैदा हो तो खुदा के घर में और शहादत पाए तब भी खुदा के घर में, पैदा हो तब भी खुदा के घर में, शहादत पाए तब भी खुदा के घर में। तो शायर कहता है, लोग काबा जिसे समझते हैं, 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 लोग
حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے۔ اور میں نے پڑھا کتابوں میں، کتابوں کو چھان کر پڑھا، کتابوں کو دیکھ کر پڑھا، جو ہری چیزیں ہوا کرتی ہے نا وہ خدا کا ذکر کیا کرتی ہے، تسبیح پڑھا کیا کرتی ہے، اور کسی پھل کا پیڑ جو کسی پیڑ کا پھل جو ہے میٹھا ہوتا ہے، اور کسی پیڑ کا پھل جو ہے پھیکا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی پیڑ کا پھل میٹھا اور کسی کا تیکھا، ایسا کیوں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس پیڑ کے دل میں علی کی محبت ہے، جس پیڑ کے دل کے اندر علی کی الفت ہے، اس پیڑ کا پھل میٹھا ہوا کرتا ہے، اور جس میں محبت ہے اس پیڑ کا پھل پھیکا ہوا کرتا ہے۔ جس میں علی کی محبت ہے تو ایک شعر اس کے متعلق سماعت کریں۔ جو زمین سے اناج اگتا ہے، 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 دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، یہ گھرانہ میرے حسین کا ہے۔ اور یہاں میلاد مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں آخری شعر تو حسین پاک ملاحظہ کرتے ہیں، حسین پاک سنتے ہیں، جو یہاں پر چراغ جلتے 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 ہیں، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، زمانہ میرے حسین کا ہے۔ تو محترم حضرات مراد حسین پاک کی محبت میں آ کر بیٹھے ہیں، اہل بیت کی الفت میں آ کر بیٹھے۔ آئیے دیکھیں محترم حضرات، تخت پر یزید بیٹھ گیا ہے، وہ پلید عقیدہ غلیظ نظریہ ناپاک کا ناصر و حامی بن کر جب تخت پر بیٹھا تو میرے امام نے ارشاد فرمایا اب مدینے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مکے میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے نانا نے بہت پہلے بتایا تھا اب دین کو بچانے کے لیے چلنا ہے، اب دین کے سلامتی کے لیے چلنا ہے۔ اب سمجھانا چاہتا ہوں ذہن کو آپ کے ذہن میں بات اتارنا چاہتا ہوں، سمجھتے بھی چلیے، اپنے ذہن میں محفوظ بھی کرتے چلیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حسین ابن علی سے یزید نے سر نہیں مانگا تھا، ہاتھ مانگا تھا۔ حسین اپنا ہاتھ مجھے دے دے، حسین ابن علی نے کہا سر تو دے دو گا لیکن ہاتھ نہ دوں گا، سر تو دے دوں گا لیکن ہاتھ نہ دوں گا۔ اب آگے اس کی تھوڑا سا میں تفسیر آپ کو بیان کر دوں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ آخر حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کیا؟ اور دیگر لوگوں نے تو بیعت کر لیا تھا لیکن حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہ کیا؟ جبکہ یہ مسئلہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے گردن پہ کوئی تلوار رکھ دے اور کہے کہ گردن کاٹ دوں گا، نہیں یہ بات بولو، تو اس وقت ضروری ہے کہ آپ بات بول کر اپنی جان کو بچا لے، دل میں ایسا نہ رکھے لیکن زبان سے بول کر جان کو بچا لے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، اب اگر کوئی مسافر سفر کرتا ہے، اب کوئی مسافر اگر سفر کرتا ہے تو
मुसाफिर के हालात में जो है 4 रकात वाली नमाज जो इसकी 2 रकात हो जाएगी। अगर कोई मुकीम इमाम नमाज पढ़ाए तो वो 4 भी पढ़ सकता है। अगर उसके पास वक्त नहीं है, जल्दी है, तो सुन्नत मौक़िदा नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार ना होगा, इसकी भी छूट है। लेकिन अगर पढ़ ले तो तक़वा तहारत वाला होगा, ज्यादा इबादत वाला होगा। तो मालूम जरा मसला तो है। ए मेरे इमाम, जब यजीद बैयत लेना चाहता था आप मुंह से बैयत कर लेते, लेकिन दिल से बैयत ना करते। अगर आप मुंह से बैयत कर लेते तो अली अकबर कुर्बान ना होते, अली असगर कुर्बान ना होते, और न मोहम्मद कुर्बान ना होते, हजरत अब्बास कुर्बान ना होते, हजरत हुर कुर्बान ना होते, हजरत आसिम कुर्बान ना होते, आपके भतीजे कुर्बान ना होते, आपके भांजे कुर्बान ना होते। आप मुंह से कह देते और उन्होंने बैयत कबूल कर लिया था, लेकिन आपने बैयत कबूल ना किया। आपने ऐसा क्यों ना किया? तो मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं और तो बैयत कर लिया है क्योंकि औरों ने जो है अपने माँ का दूध पिया था, माँ का दूध पी के बड़े हुए थे, माँ का दूध पी के जवाब हुए थे। मसला यह था अगर सर पे तलवार रख दी जाए तो जबान से बोल दो, उन्होंने बोल दिया, वो भी गुनहगार नहीं है। लेकिन मैंने माँ का दूध तो पिया था, लेकिन मैंने रसूल पाक की जबान को चूसा था। रसूल पाक ने जो है अपने जबान को चुसवाया था, अपने कंधे पे बैठाया था, अपने सजदे में जो है पीठ पे बैठा कर जो है सजदे को लंबा किया था। और मेरे नाना थे, मुझे बताया था, तो जिन्होंने माँ का दूध पीकर बड़े हुए थे उन्होंने बैयत को कबूल कर लिया, लेकिन जिन्होंने नाना जान की जबान को चूस कर बड़ा हुआ था उसने बैयत को हरगिज़ न कबूल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम मसला तो बनता है, बैयत कबूल करते, बैयत एक्सेप्ट करते तो 72 की जान बच जाती। इमाम फरमाते एक तरफ 72 की जान थी, एक तरफ पूरे उम्मत मुसलमान था। एक तरफ 72 और एक तरफ नाना जान की पूरी उम्मत। तो मैंने जो है उम्मत को बचाया और अपने 72 को कुर्बान कर दिया। मैंने कहा इमाम आपने बचाया क्या? इमाम आपने क्या बचाया? तो मोहतरम आज़ाद, मैदान करबला मेरे इमाम ने बचाया क्या? मैदान करबला मेरे इमाम ने बचाया क्या? वो खिलाफत जो मेरे नबी ने सिद्दीक़ अकबर को दिया, सिद्दीक़ अकबर से फारूक आज़म को मिली, फारूक आज़म उस्मान गनी को मिली, उस्मान गनी से मौला अली को मिली, मौला अली से हज़रत इमाम हसन को मिली, और हज़रत हसन से जो है हज़रत अमीर मुआविया को मिली। लेकिन वही खिलाफत जब यजीद पलीत ने उस पर कब्जा कर लिया, उसी खिलाफत को बचाने के लिए, उसी दौलत को बचाने के लिए मेरे इमाम ने 72 को कुर्बान कर दिया और उस दौलत को बचा लिया। कहेंगे दौलत को बचाने के लिए 72 कुर्बान कर दिया। दौलत, अब दौलत पे आके आपको समझाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा कि आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बाप दादा मेहनत और मजदूरी करते हैं, उनके पास मानो सर नहीं था, गरीब थे, उनके बच्चों ने मेहनत किया, आज वो महलों में रहते हैं। बच्चों के पास कुछ नहीं था, जब बच्चे थे नहीं था, लेकिन बच्चों ने मेहनत किया, दौलत का अंबार लग गया, पैसा हो गया। तो दौलत कमाने में बड़ी मेहनत लगती है, और जितनी मेहनत दौलत कमाने में लगती है उससे ज्यादा मेहनत दौलत बचाने में लगती है। अगर दौलत आपने कमा लिया है, लेकिन अगर आपने दौलत को बचाया नहीं है तो फिर आप रोड पर आ जाएंगे, फिर आप सड़क पे आ जाएंगे। तो दौलत कमाना
तो मेहनत का काम है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत का काम जो है वो दौलत को बचाना है। अब अगर आप ये समझ गए हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे ईमान एक दौलत का नाम है, मोहब्बत एक दौलत का नाम है, खुदा का खौफ एक दौलत का नाम है, नमाज एक दौलत का नाम है, रोजा एक दौलत का नाम है, हज एक दौलत का नाम है, ज़कात एक दौलत का नाम है, इखलाक एक दौलत का नाम है, किरदार एक दौलत का नाम है। आका करीम ने इतनी मेहनत किया कि रातों में रास्तों में कांटे बिछाने वाले जो है नबी के गुलामी में आ गए। आका ने इतनी मेहनत किया कि रातों हुल को पूजने वाले जो है नबी के गुलामी में आ गए। आका ने इतनी मेहनत किया कंकड़ मांगने वाले जो है आपके खैमे में आ गए। आका ने इतनी मेहनत किया कंकड़ फेंकने वाले जो है आपके गुलामी में आ गया। आका ने इतनी मेहनत किया कि रास्ते में कांटे डालने वाले जो है आपके गुलामी में आ गए। आका ने इतनी मेहनत किया कभी ताइफ के मैदान में कंकड़ जो खाकर, कभी 3 साल जो है असब अबी तालिब में गुजारकर, कभी जो है अपने ऊपर ओझड़ियां डलवा कर, कभी जो है अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवा कर। आका ने इतनी मेहनत किया कि जो अपनी पहचान भूल गए थे उन्होंने खुदा को पहचान लिया। आका ने इतनी मेहनत किया कि अपनी पहचान भूल जाने वालों ने खुदा को पहचान लिया। आका ने इतनी मेहनत किया कि नमक और काफूर में फर्क पैदा न करने वाले जो है खुदा को पहचान लिया। कैसरो किसरा के तार बन गए। आका ने इतनी मेहनत किया, जंगे खंदक में मेहनत किया, जंगे खैबर में मेहनत किया, जंगे हुनैन में मेहनत किया, जंगे बदर में मेहनत किया। ये सारी मेहनत की गई, यानी मालूम चला जंगे खंदक जो है एक दौलत का नाम है, जंगे बदर जो है एक दौलत का नाम है। जो दौलत खंदक के जरिए कमाई गई थी, बदर के जरिए कमाई गई थी, हुनैन के जरिए कमाई गई थी, जंगे खंदक के जरिए कमाई गई थी। इस दौलत को मेरे नबी ने कमाया था। जब वो दौलत कमा ली गई, उस दौलत कमाने वाले जो है एक एक करके कब्रों की ज़ीनत बन गए थे, अपनी कब्र को सवार रहे थे, अपनी जन्नत को सवार रहे थे। जब ये दौलत जो है ज़ाय होने वाली थी, जब ये दौलत जो है बर्बाद होने वाली थी, नबी का दंदान शहीद होना, तब ये ज़ाय होने वाला था। हज़रत हमज़ा का शहीद होना ये ज़ाय होने वाला था। हुनैन की दौलत जो है ज़ाय होने वाली थी, बदर की दौलत जो है ज़ाय होने वाली थी, रातों पे चलने वाली मिन्नत जो है ज़ाय होने वाली थी। तो मेरे इमाम ने कहा अब मदीने में बैठने से काम नहीं चलेगा, करबला जाना पड़ेगा। आबरू की जो करबला जाना पड़ेगा, वो आपकी आबरू को बचाना पड़ेगा। नबी का दंदान शहीद होगा, उसकी आबरू बचाना पड़ेगा, खंदक की आबरू बचाना पड़ेगा। अरे दौलत बचाना है तो खानदान को कुर्बान करके आखिरी सजदे में कुर्बान होना पड़ेगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस दौलत को बचाने जाना पड़ेगा। अब मेरे हुसैन जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। दिमाग में डालने वाली बात, मौजू पे जाऊंगा लेकिन समझा दूं, दुनिया की फितरत है। उलमाए काम तशरीफ फरमा, हज़रत लोग बैठे, पूछिए जब ये लोग पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ रहा था, अगर उस्ताद मारते थे, अगर उस्ताद पीठ पे मारना चाहे तो हम हाथ दे के बचाते कि चोट हाथ पे ले ले, पीठ पे न लगने पाए। अगर उस्ताद चेहरे पे मारना चाहता था तो चेहरे पे हाथ से रोकना चाहते थे कि हाथ को चोट लग जाए लेकिन जो है चेहरे पे चोट ना लगे। अगर लड़ाई झगड़ा होता है, कोई आपको मारता है, कोई आपको मारता है, तो इंसान अपने पीठ को जख्मी नहीं होने देता, अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। सर पे मारना चाहता है तो हाथ के जरिए सर को बचाता है, यानी हाथ चोटिल हो जाए लेकिन बदन ना चोटिल होने पाए। ये फितरत इंसान की है। लेकिन ए मेरे इमाम, आपने बदन को चोटिल कर लिया था, आपने बदन को चोटिल कर लिया था, लेकिन हाथ को हाथ पे चोट ना आने दिया। आपने सर पे चोट ले लिया था लेकिन हाथ पे चोट ना खाया। ए मेरे इमाम, आपने हाथ को क्यों बचाया? तो मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, अरे ये हाथ जो मैदान करबला है मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ करे तरह नहीं है, बल्कि ये हाथ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, यदुल्लाह यानी मेरा हाथ बंदों के हाथ में, यानी ए महबूब जो आपके हाथ में लोग बैयत करते हैं वो आपके हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथ में बैयत करते हैं। तो मैदान करबला है जो हुसैन इब्ने अली का हाथ था वो तने तरह हुसैन का हाथ नहीं था, वो तो मेरे नबी का हाथ था, वो तो सिद्दीक अकबर का हाथ था, वो तो फारूक आजम का हाथ था, वो तो उस्मान गनी का हाथ था, वो तो मौला अली का हाथ था, वो तो इमाम हसन का हाथ था। मेरे इमाम जो है अपने हाथ को कैसे देते?
अरे वो हाथ जो है यदुल्लाह की जिंदा तस्वीर करबला के मैदान में बन गया था। मेरे इमाम ने कहा अरे सर तो दे दूंगा लेकिन हाथ कभी नहीं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। तो करबला के मैदान में सिर्फ तले तनहा मेरा हाथ नहीं है बल्कि ये हाथ यदुल्लाह की जिंदा तस्वीर बन गया है। अब इस हाथ को मैं कैसे दे दूं? अभी नहीं समझे किस चीज की लड़ाई है? और आसान कर दूं, अगर मेरे इमाम यजीद की हाथ पे बैयत कर ले, यजीद को खलीफा मान लेते तो आज हमारा हाल क्या होगा? अगर मेरे इमाम यजीद की हाथ पर बैयत कर लेते तो मोहरे तस्दीक लग जाती, हक की मोहर लग जाती। तो लोग कहते जब इमाम ने उसे खलीफा मान लिया तो हम किस खेत की मूली हैं? मिसाल के तौर पे यूं समझिए कि आपके यहाँ कोई इंसान है, मुझे मान लीजिए, आप इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे तो नहीं है। अब अगर कोई आपके यहाँ आए, आने के बाद वो कुछ बताए या कुछ बोले, या मिसाल के तौर पे कोई पीर साहब आए, आपके यहाँ कोई पीर साहब आए और पीर साहब नमाज पढ़े, पीर साहब नमाज पढ़े और पीर साहब नमाज पढ़ाएं। अब अगर पीर साहब के पीछे आपकी इमाम साहब नमाज पढ़ ले तो पीर साहब में लाख बुराई हो, आप ये कहेंगे जब हमारे इमाम ने नमाज पढ़ लिया तो हम क्यों ना पढ़ना? यही कहेंगे ना कि जब इमाम ने मेरे पढ़ लिया है तो मैं क्यों ना पढ़ूं? तो लाख बुराइयां थी लेकिन आपके इमाम ने पढ़ लिया है तो आप कहेंगे अब पढ़े लिखों की बात है, ये अपना समझते होंगे, जब इन्होंने पढ़ लिया तो मुझे पढ़ने में क्या होता है? इसी तरह मोहतरमा साहब, अगर मेरे इमाम यजीद की बैयत कबूल कर लेते, यजीद को खलीफा मान लेते तो पूरी दुनिया जो है यजीद को खलीफा मान लेती कि जब इमाम ने मान लिया तो हमें मानने में क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तो हमें मानने में क्या है? इमाम ने जो है मोहर तस्दीक लगा दी तो हम किस खेत की मूली? इमाम ने मान लिया तो हम क्यों ना माने? इसलिए मेरे इमाम ने यजीद के हाथ पर बैयत कबूल नहीं की, यजीद को खलीफा नहीं माना, अपना सर देना तो गवारा किया, अपना सर देना तो गवारा किया लेकिन हाथ देना गवारा नहीं किया। अब भी नहीं समझे, अभी बैयत का मतलब नहीं समझे। आज यहूदी है ना, यहूदी कहते हैं हज़रत मूसा के मानने वाले हैं, क्या वो सच्चे यहूदी हैं? नहीं है। ईसाई कहते हैं हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, क्या सच्चे ईसाई हैं? नहीं है। तालीमाते मूसा पे यहूदी है? नहीं है। तालीमाते ईसा भी ईसाई है? नहीं है। उनके दरमियान ईसाईयत तो है लेकिन वो सच्चे ईसाई नहीं है। उनके दरमियान इंजील तो है लेकिन उसमें बदलाव हो गया है। उनके अंदर तौरात, उनके पास तौरात तो है लेकिन तौरात में बदलाव हो गया है। अरे सब नबियों की शरीयत तो बदल गई है लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत ना बदली। मैंने कहा मौला सबकी शरीयत तो बदल गई है, सबका कानून बदल गया है, सब में घटा बढ़ा दिया गया है लेकिन कुरान ना बदला गया, मुस्तफा की शरीयत ना बदली गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जवाब मिलता है और नबियों की नस्ल में कोई हुसैन नहीं पैदा है, मैं अपने सर बना के शरीयत को बचा। नस्ल में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ है, अपने सर को बढ़ाकर जो है शरीयत को बचा लिया। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत ये बाकी है, हुसैन ने अपने सर को जो है कटाकर शरीयत को बचाया है। अगर हुसैन पाक ने सर ना दिया होता, जिस तरह आज यहूदी मक्कारी करते हैं या अंग्रेज मक्कारी करते हैं, नंगे कहते हैं और कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, इसी तरह मुसलमान भी होता, ये जुआ भी खेलता, ये शराब भी पीता, ये जिना भी करता, ये खूबियों को हरम में भी रखता, ये सौतेली बाहों को निकाह भी करता और कहता हम मुसलमान। मेरे इमाम ने एहसान कर दिया है दुनिया पर, मेरे इमाम ने वो एहसान किया इसका बोझ दुनिया उतार ही नहीं सकी। अब मक्का की सरजमीन है, मेरे इमाम जानना चाहते हैं
मक्का की सरजमीन को छोड़ना चाहते हैं। सारे सहाबा इकराम रोकते हैं आप मत सफर कीजिए, ये गोपी बहुत बागी है, ये आपको धोखा देंगे, इन्होंने आपके बाप को धोखा दिया था, इन्होंने आपके भाई को धोखा दिया था, ये आपको भी धोखा देंगे। लेकिन मेरे इमाम ने कहा तुम लोग नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ, कोई ऐसी चीज है जो मुझे कूफा की तरफ खींच रही है। आप अपने अहलो अयाल को लेते हैं, आप अपने खानदान को लेते हैं, खानदान को लेने के बाद जो है आप शहर मक्का शरीफ को छोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, कुछ लोग कहा करते हैं, कुछ लोग बोला करते हैं, कुछ लोग ये कहा करते हैं कि हुसैन पाक दौलत के लिए गए थे। अरे मैं कहता हूँ ना, अगर कोई दौलत के लिए जाएगा, अगर कोई जंग के लिए जाएगा, अगर कोई सियासत के लिए जाएगा, तो क्या बच्चों को लेकर जाएगा, क्या बीवी को लेकर जाएगा, क्या बूढ़ों को लेकर जाएगा? अरे किसको लेकर जाएगा? अरे एक मामूली प्रधान अपनी रैली करता है तो बच्चों को लेकर नहीं आता है, बड़े बड़े मानव को लेकर आता है। जब एक प्रधान का हाल ये है तो जो हुकूमत को छीनने के लिए जा रहा है, क्या वो 1 महीने के बच्चे को साथ लेकर जाएगा? क्या वो 6 महीने के बच्चे को साथ लेकर जाएगा? क्या वो 8 साल के बच्चों को साथ लेकर जाएगा? क्या वो एक बीमार को अपने साथ लेकर जाएगा? क्या वो अपने खानदान को अपने साथ लेकर जाएगा? क्या वो औरतों को अपने साथ लेकर जाएगा? तो मालूम चला हुसैन इब्न अली करबला जा रहे हैं, हुसैन इब्न अली कूफा जा रहे हैं, तो सियासत के लिए नहीं बल्कि दीन को बचाने के लिए जा रहे हैं, शरीयत को बचाने के लिए जा रहे हैं। मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम सफर करते हैं, कूफा की सरजमीन तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मकाम पे आप पहुंचते हैं और मकाम पे पहुंचने के बाद जो है आप ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद अपने साथियों से कहते हैं, ये साथियों सफर तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम हक के लिए जा रहे हैं, हम नाना की शरीयत को बचाने के लिए जा रहे हैं, हम नाना के दिन को बचाने के लिए जा रहे हैं। अभी आप आगे फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और मोहतरमा सा एक मकाम पे जब आप पहुंचते हैं तो एक आसिफ जो है कूफे की तरफ से आ रहा है, वो कूफे की सरजमीन से आ रहा है, कूफा से चल के आ रहा है। इमाम से मुलाकात होती है और जब इमाम से मुलाकात होती है ना तो वो खबर देता है, ए इमाम आप कूफा की सरजमीन ना जाइए, ए इमाम आप कूफा में मत जाइए। इमाम अगर आप कूफा में जाएंगे, मेरे इमाम अगर कूफा की सरजमीन पे आप जाएंगे तो वहाँ के लोग जो है आपके मुखालिफ हो गए हैं, उन्होंने आपके भाई को शहीद कर दिया है, आपके भतीजों को शहीद कर दिया है, वो लोग इब्ने ज़ात के गुण गाते हैं, आप कूफा के सरजमीन पे ना जाइए। जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जो है ये बात सुनते हैं कि मेरे भाई को शहीद कर दिया गया है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, तो दिल को बड़ा गम होता है, दिल में बड़ी तकलीफ होती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिल्कुल अफसरदा हो जाते हैं। अपने साथियों को बुलाते हैं, अपने अहलो अयाल को बुलाते हैं, उन्हें बैठा इकट्ठा करते हैं और बैठाने के बाद उनसे पूछते हैं, ये लोगों तुम मुझे बताओ, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया है, क्या हमें कूफा चलना चाहिए या कूफा की सरजमीन पे चलना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए? तो मुस्लिम बिन अकील के दोनों भाई थे और उनके बेटे थे, उन्होंने कहा था ए इमाम हम वापस नहीं जाएंगे, अपने भाई का बदला लेंगे, हम किसास लेंगे, अगर बदला ना ले सके तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे। अरे हम वापस नहीं जाएंगे बल्कि कूफा की सरजमीन पे जाएंगे और जिन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया है हम उनसे बदला लेंगे। वो बातें आपको बता रहा हूं जिससे आपका फायदा हो, बातें आपके माइंड में सेव हो जाए। अब ये तो मालूम चल गया है कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, लेकिन उनके भाई जो है उनके बच्चे मुतालबा कर रहे हैं, हमें बदला लेना है, हमें किसास लेना है, हम कूफा की सरजमीन पे जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा ठीक है चलो, लेकिन ये बात कह दी गई कि ये बात जो है खैमे में नहीं फैलना चाहिए, ये बात औरतों में नहीं जाना चाहिए, ये बात खैमे में नहीं फैलना चाहिए। ये कहने के बाद जो है, ये तंबीह करने के बाद जो है मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जो है खैमे के अंदर जाते हैं और जैसे मेरे इमाम खैमे में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि मुस्लिम बिन अकील की बेटी बैठी हुई है, मुस्लिम बिन अकील की साहबजादी बैठी हुई है, मुस्लिम बिन अकील की लाडली बैठी हुई है। ऐसे मुस्लिम बिन अकील की बेटी को मेरे इमाम देखते हैं, मेरे इमाम की नजर पड़ती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अरे मोहब्बत आ जाती है, अरे शफकत आ जाती है। अगर आपके पड़ोसी में किसी का इंतकाल हो जाता है, अगर उसका बच्चे छोटे होते हैं, आप कहते हो ये बच्चे
यतीम हो गए हैं, आप उन पे मोहब्बत से हाथ फेरते हो, आप उनसे मोहब्बत करते हो, आप उनका ख्याल रखते हो। आपके दो बच्चे यतीम हो गए हैं, अब इनका सहारा कौन बनेगा, अब इनका फुर्साने हाल कौन बनेगा, अब इनका मददगार कौन बनेगा, अब इनका देखभाल करने वाला कौन होगा। आप तो ये कहा करते हैं जैसे मेरे इमाम की नजर पड़ती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मेरे इमाम बच्ची के पास जाते हैं, उसे अपने सीने से लगाते हैं, उसके सर पे मोहब्बत से हाथ फेरते हैं, उसके सर पे मोहब्बत से हाथ फेरते हैं, तब तक वो बच्ची बोल पड़ती है, ए मेरे इमाम आज आप ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं, ए मेरे इमाम आज आप ऐसी उल्फत कर रहे हैं, जैसे कोई यतीम के साथ किया करता है, ऐसे कोई गरीब के साथ किया करता है। अगर किसी के बाप पे इंतकाल हो जाए, ऐसी मोहब्बत लोग किया करते हैं, वैसी मोहब्बत आप कर रहे हैं। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, ए बच्ची तू यतीम हो गई है, लेकिन अपने आप को यतीम न समझना। अरे तेरा बाप हुसैन है, कभी अपने आप को यतीम न समझना। अब बच्ची ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, हुसैन मुझे बताइए, मौला हुसैन मुझे बताइए, अब्बा जान को तो शहीद कर दिया गया है, लेकिन अब्बा जान के साथ जो है मेरे दो भाई गए थे, उनका हाल क्या हुआ है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया है। ये खबर पूरे खैमे में फैलती है कि जो भी सुनता आंखों से आंसू बहते हैं, जो भी सुनता है उसका दिल होता है। मालूम तेरा मोहतरमा सा जब मुस्लिम में नकली खबर जो है खैमे में पहुंचती है, तो मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, अरे मुस्लिम में नकील जो है किसी दुनियादार के लिए शहीद नहीं हुए हैं, बल्कि मदीने के ताजदार के लिए शहीद हो रहे हैं। अरे आंसू मत बहाओ, बल्कि सब्र करो। अल्लाह तबारक व तआला जो है उनके मर्तबे को ऐसा जिंदा रखेगा, उनके नाम को ऐसा जिंदा रखेगा कि जब तक दुनिया कायम रहेगी मुस्लिम में नकील के नाम को लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम साहब इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला जो है उन्हें ऐसी जिंदगी अता फरमा देगा ताकि क़यामत तक लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे जाते हैं, एक मकाम पे आप पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहीं ठहरते हैं। अभी ठहरे ही थे, अभी काफिला लगाया ही था, अभी खैमा गाड़ा ही था। नजर क्या देखते हैं, कुछ लोग चले आ रहे हैं, कुछ घुड़सवार चले आ रहे हैं, कुछ घुड़सवार दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि इमाम अली मकाम के आने की खबर जो है इब्ने ज़ियाद को हो गई थी। ये इब्ने ज़ियाद जो है इतना बड़ा मक्कार था, इब्ने ज़ियाद जो है इतना बड़ा फराडी था, इब्ने ज़ियाद जो है इतना बड़ा जालिम था। इसने अम्र बिन साद को बुलाया। ये अम्र बिन साद कौन है? ये एक सहाबे रसूल के बेटे हैं, ये एक सहाबी रसूल के बेटे हैं, ये उस सहाबी के बेटे हैं जिनको मेरे नबी है दुनिया में जन्नत की बशारत दिया था। देखो बाप तो जन्नती है, लेकिन बेटा कहाँ पहुंच गया है? बाप तो जन्नती है, लेकिन बेटे का हाल क्या हो गया? इब्ने ज़ियाद जो है अम्र बिन साद को बुलाता है। अम्र बिन साद को बुलाने के बाद उससे कहता है, ऐ अम्र बिन साद, तुझे जो है इमाम हुसैन के मुकाबले में जाना है, तुम्हें उससे लड़ने के लिए जाना है, तुम्हें उन्हें कत्ल करने के लिए जाना है। अम्र बिन साद कहता है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं उनके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। तो मोहतरमा साहब इब्ने साद बोल पड़ता है, तुम्हें रह की हुकूमत दे दी जाएगी, तुम्हें दौलत दे दी जाएगी, तुम्हें मालो सर दे दिया जाएगा, तुम्हें पैसा दे दिया जाएगा। अरे देखो बाप सहाबी है जिनको जन्नत में दुनिया में जन्नत की बशारत मिल चुकी है, लेकिन बेटे का हाल क्या है? बेटे का मामला क्या है? दौलत की लालच में जो है, पैसे की लालच में जो है आले रसूल से टकराने के लिए तैयार हो गए, करने के लिए तैयार हो गए। बोले ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। और अपने घर जाते हैं सोचने के लिए। जब घर पहुंचते हैं अपने बच्चों से पूछते हैं, तो एक बच्चा कहता है बड़ी दौलत मिलेगी, एक बच्चा बोलता है बड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन दूसरा बच्चा बोल पड़ता है कि दौलत हमारे किस काम की है, ये पैसा हमारे किस काम का है? अरे ये दुनिया तो 4 दिन के लिए है, फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे अली रसूल से अगर दुश्मनी लोग है तो ना तो यहाँ माफ किए जाओगे, ना तो वहाँ माफ किए जाओगे। तब तक जो है अम्र बिन साद का भांजा आ गया, उसने भांजे से मशवरा किया, तो भांजे ने कहा इमाम हो, अरे ऐसी दौलत को ठोकर मारो, ऐसी दौलत को लात मारो जो अहले मुआले पैसे दुश्मनी करने के लिए कहती हो, अहले पैसे जो है लड़ने के लिए कहती हो। अरे ये दुनिया कब तक काम आएगी? अरे दुनिया की दौलत के चक्कर में ना पढ़ो, अहले पैसे की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। जब दौलत का खुमार करता है, जब दौलत का
तो इंसान हर चीज भूल जाया करता है, हर चीज का वकार खत्म हो जाता है। उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई तो लड़ने के लिए जाएगा ना, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई ना कोई तो लड़ने के लिए जाएगा ही, इसलिए मैं जाता हूँ। और उधर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने खैमे को डाल दिया करता, खैमा लग गया है। देखा कुछ घोड़सवार दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, कुछ घोड़सवार चले आ रहे हैं। और जब घोड़सवार आ रहे थे ना, घोड़सवार दौड़ रहे थे ना, मेरे इमाम ने कहा ये कौन लोग हैं? खैमे से बाहर निकल कर देखने लगे, और जब खैमे से बाहर निकल कर देखने लगे, जब वो लोग करीब आए तो मालूम चला कि एक सिपे सालार है और उसके साथ उसके कुछ लश्कर है, उसके कुछ सिपाही हैं, और जो सबसे आगे सिपे सालार है उसका नाम हुर है। क्या नाम है? उसका नाम हुर है। हुर घोड़े से उतरता है, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है। आने के बाद अरीजा पेश करता है, मेरे इमाम सलाम करता है। मेरे इमाम सलाम का जवाब देते हैं, कहते हुर तुम इतना कांप क्यों रहे हो? ये तुम्हारे घोड़े कांप क्यों रहे हैं? कहा इतनी ज़्यादा इतनी तेजी के साथ भेजा है कि रास्ते में कहीं आराम करने का मौका नहीं मिला। मेरे इमाम जान रहे हैं ये जालिम मुझे 3 दिन भूखा प्यासा रखेंगे, इनके जानवर तो पानी पिएंगे लेकिन मेरे बच्चों को पानी नहीं मिलेगा। मेरे इमाम फरमा रहे हुर पानी पी लो, अपने जानवरों को पानी पिला दो, अपने जानवरों को पानी पिला दो। शराफत का खानदान तो ये खानदान है जो आपको प्यासे रखने वाले हैं, मेरे इमाम उन्हें पानी पिला रहे हैं। काहुर पानी पी लो। उसके बाद का हुर कैसे आना है? कहा ये इब्ने ज़ियाद ने जो है खत दिया है, आप पढ़ लीजिए। इब्ने ज़ियाद ने खत में लिखा था या तो यजीद की बैयत कबूल कर लो या तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। और उसने हुर को लिखा था, आए हुर इमाम को कहीं जाने मत दो, ये जहां जाए इनके साथ साथ रहना, इन्हें घेर कर रखना, इन्हें अलहदा न छोड़ना। हुर ने कहा ठीक। अब जहां जहां इमाम का काफिला जाता हुर काफिले के साथ रहे। कहा हुर तू मेरा रास्ता रोकेगा, तेरी इतनी हिम्मत? हुर ने कहा हुकूमत का फरमान है, मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा, मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। मेरे ईमान को जला लाता है। आप इरशाद फरमाते हैं, आए हुर तुझ पर तेरी मां रोए, तुझ पर तेरी मां रोए। हुर ने सुना का इमाम चाहे जितना बड़ा पहलवान होता, चाहे जितना बड़ा दौलतमंद होता, अगर कोई मुझे ऐसा जवाब कहता, ऐसा जवाब देता तो पलटे में मैं भी जवाब देता, लेकिन आपको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आप कोई मामूली नहीं है। अरे आपकी अम्मी जान तो है, खातूने जन्नत है, जिसको मेरे नबी ने अपने दिल का टुकड़ा का है, इसके बारे में नबी कहते हैं फिदा का उम्मी वो अभी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप हुआ। आपकी माँ तो वो है लगते जिगर नबी नूरे नजर। मैं आपको नहीं कह सकता लेकिन आपका साथ भी नहीं छोड़ूंगा, आपको लायका नहीं कहूंगा। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हुर मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, इन लोगों ने मुझे बुलाया है, खुतूत पे खुतूत भेज कर बुलाया है, खत पे खत भेज कर बुलाया है। ये देखो खुतूत पे खुतूत देख लो, ये खत पे खत देख लो, इन्होंने मुझे बुलाया तब मैं आया हूँ या अपने मर्जी से नहीं आया हूँ। और कहता है मुझे मालूम नहीं है, इसने आपको खत लिखा है, इसने आपको खत भेजा है। मेरे इमाम कुफियों से पूछते हैं तो साथ में सिपाही बन कर आए थे, इन लोगों तुमने ही तो खत भेजा था, इन लोगों तुमने ही तो खुतूत भेजा था, अब मैं तुम्हारे दरमियान आ गया हूँ तो तुम मेरे दुश्मन हो गए हो, तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। अरे तुम्हें मालूम नहीं है इस वक्त दुनिया में जो है कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे ज्यादा नबी पाक का करीबी है, मुझसे ज्यादा करीबी इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है, सबसे ज्यादा नबी का करीबी मैं हूँ, नबी का नवासा कोई और नहीं है, मैं हूँ। उन्होंने कहा बात तो सच है,
इमाम के पास बात होती है, इमाम से गुफ्तगू होती है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद हुजूर कहते मेरे इमाम, चूंकि मेरे साथी मेरे साथ हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि औरतों की वजह से आप अपने खैमे को जो है मेरे खैमे से थोड़ा दूर लगाइएगा, और जब रात हो जाए ना तो आप सफर कीजिएगा तेजी के साथ, और इस जमीन को आप दूर, इस जमीन से आप दूर चले जाइएगा। जब सुबह हमारी आँख खुलेगी आपको ढूंढेंगे, लेकिन आपके साथ आपका पीछा तेजी के साथ नहीं करेंगे, बल्कि सिलो सिलो जाएंगे, आप दूर निकल जाएंगे। मेरे इमाम इरशाद तो बड़ा अच्छा मशवरा है, हुजूर अल्लाह तुझे खुश रखे। उनको दुआ देकर मेरे इमाम काफले के अंदर आते कहते अपनी तैयारी कर लो, हमें इस जगह को छोड़ कर जाना है, हमें इस जगह से दूर जाना है, हमें काफले को कूच करना है। जैसे इमाम ने कहा, सबने कहा ठीक है, आवाज नहीं की जाएगी, रात में तैयारी की जाएगी। वक्त हुआ इशा की नमाज सबने पढ़ा, पढ़ने के बाद जो है आग बुता दी गई, आग को बुताने के बाद खैमे को ऊँटों पे लाद दिया गया और सब लोगों ने सफर किया, बड़े तेजी के सफर किया, रात भर सफर किया, रात भर चलते रहे, रात भर सफर करते रहे, रात भर चलते रहे, रात भर सफर करते रहे। लेकिन जैसे सुबह होती है तो क्या देखते हैं, अभी हुर का खैमा थोड़ी दूर पे है, उसी जमीन पे मौजूद है, उसी जगह पे मौजूद है। आखिर में खैमा फिर वही डाल देते हैं। जब हुर नमाज से फारिग होते हैं, वो इमाम के पास आते हैं, ए इमाम मैंने तो आपसे कहा था कि आप चले जाइएगा, लेकिन आप तो गए नहीं, आप तो यहीं मौजूद है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हुर मैं तो गया था, लेकिन मैं तो आगे ना बढ़ पाया, मैं तो आगे ना जा पाया, मैं यहीं घूम फिर के फिर आ गया। तो हुर ने कहा इमाम ये तो अच्छा ना हुआ, एक काम आप कीजिएगा, आज दिन में 2 आदमी जाकर रास्ता को देख कर आएंगे, उसके बाद जब रात में सफर करेंगे तो रास्ता बताते जाएंगे, आप सफर करते जाएंगे। इमाम ने कहा ठीक है, आप 2 आदमी को भेजा जा रहा है रास्ता देखने के लिए, और जब रात का टाइम होता है मेरे इमाम फिर सफर में निकलते हैं, रात भर सफर करते हैं। लेकिन सुबह होती है तो चटियल मैदान में मौजूद है, जब सुबह होती है एक मैदान में मौजूद है, जब सुबह होती है एक रेतीले मैदान में मौजूद होते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं अरे हम दूर तो ना गए, हम तो वहीं मौजूद हैं, सर उसमें खुदा कोई हिकमत है। किसी से पूछा इस जमीन को क्या कहते हैं, किसी ने कहा नैनवा कहते हैं, कहा और क्या नाम है, क्या इस जमीन को करबला कहते हैं। मेरे इमाम समझ जाते हैं अरे ये करबला वही जमीन है जिसके बारे में आना जानने अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वही सा जमीन है जिसकी खबर नाना जान ने दिया था। और इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के खैमे में बच्चे को मालूम हो गया था कि इमाम को करबला में शहीद किया जाएगा, इमाम को करबला में शहीद किया जाएगा। बच्चे को मालूम था। एक जंग के मौके पर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम सरकार मौला अली बाबे खैबर उखाड़ कर फेंक देने वाला वो शेख जब उस मैदान में पहुंचता है तो रोने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साथियों ने पूछा ए बाबे खैबर को उखाड़ कर फेंकने वाले, ए बहादुर आज आंखों से आंसू क्यों बह रहा है? कहा ये करबला की सरजमीन है, सर यहाँ मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा, यहाँ बेचादर औरतों को जो है खिलाया जाएगा, यहाँ वो पूछे लगेंगे, यहाँ मेरे अली असगर को जो है ज़िबा किया जाएगा। मेरे इमाम के बाप ने पहले ही बता दिया था। अब मेरे इमाम को वही याद आ रहा है, नाना जान ने इसी के बारे में बताया था, नाना जान ने इसी की खबर दिया था, नाना जान ने इसी के बारे में बताया था। अब ये वही वादी है, अपना खैमा वहां लगा देते हैं, फिर करीब फिर आते हैं। उन्होंने पूछा इमाम आपने सफर नहीं किया है? तो मोहतरम हज़रत इमाम इरशाद फरमाते हैं यही तो मसरत खुदाबंदी है, अब लगता है करबला से हम जान ही पाएंगे, अब करबला से दूर नहीं जाएंगे, बल्कि वो मंजिल पे आ गए हैं जहाँ के लिए हम निकले थे, उस मंजिल पे आ गए हैं, उस मंजिल पे आ गए हैं जहाँ के लिए हम निकले थे। अब हमारी मंजिल यही है। उन्होंने कहा ठीक है, तब तक नजर क्या पड़ती है, तब तक क्या देखते हैं, गर्द में उड़ता हुआ जो है एक काफिला चला रहा है, कुछ घुड़सवार चले आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, मेरे इमाम भी देख रहे हैं, ये घुड़सवार कौन है जो दौड़े चले आ रहे हैं, ये घुड़सवार कौन है जो भागे चले आ रहे हैं, तो ये घुड़सवार और कोई नहीं है, ये अमर बिन साद है। तो अपने सिपाहियों को लेकर जो है करबला के मैदान में आ रहा है, क्योंकि इब्ने ज़ियाद
भेजा है, या तो हुसैन से बैयत ले लेना, या तो हुसैन को कत्ल कर देना, या तो हुसैन से बैयत को एक्सेप्ट करवा लेना, या तो हुसैन को कत्ल कर देना। इब्ने साद के कहने पर जो है, इब्ने साद के कहने पर जो है अम्र बिन साद जो है वो करबला के मैदान में आ रहा है। आने के बाद कहता है ये हुसैन यजीद की बैयत को कबूल कर लो, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, या तो मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, या तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं यजीद की बैयत तो हरगिज़ ना कबूल करूंगा। अम्र बिन साद कहता है फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जो है अपने खेमे में जाते हैं और रात में नमाज पढ़ने के बाद जो है इशा की नमाज पढ़ने के बाद जो है अपने साथियों को बैठाते हैं और साथियों को बैठाने के बाद जो है साथियों से कहते हैं ये साथियों सुनो सुनो, यजीद दुश्मनी मेरे साथ है, वो तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं है, वो मेरे खून के प्यासे हैं, वो मेरे खून के भूखे हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वो मुझे शहीद करना चाहते हैं, उनकी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं है। अरे तुम लौट जाओ, तुम मेरे खातिर जो है अपनी जान कुर्बान ना करो। तो साथियों ने कहा था ये इमाम आपके साथ आए हैं, अगर साथ को छोड़कर चले जाएंगे तो कल नाना जान को मुंह क्या दिखाएंगे। अरे आपके साथ आए हैं, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए जान लेना पड़े तो जान लेंगे भी, और अगर आपके लिए जान कुर्बान करना पड़े तो जान कुर्बान भी कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चिराग जल रहा है, मेरे इमाम ने सोचा चिराग जल रहा है, रोशनी है, शायद कोई शर्मो हया की वजह से जाना चाहता। मेरे इमाम ने चिराग को बंद कर दिया, लोगों अंधेरा हो गया है, अब जा सकते हो। चिराग बंद था, खामोशी थी, लेकिन जब मेरे इमाम ने चिराग को जलाया तो देखा कोई न गया, सब वहां बैठे थे। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं तुम गए क्यों नहीं? तो लोगों ने कहा अरे जो चिराग का दीवाना होता वो चला जाता, हम चिराग के दीवाने नहीं है तो हम तो आले रसूल के दीवाने। और जब इब्ने ज़ियाद आया ना, इब्ने ज़ियाद आने के बाद जो है 500 सिपाहियों को नहरे फुरात पर बैठा दिया कि हुसैन के काफले वाले को पानी ना मिले, हुसैन के खैमे में पानी ना जाने पाए। पानी पे पहरा लगा दिया गया, कहा हुसैन या तो यजीद की बैयत कबूल कर लो या तो भूखे प्यासे मरने के लिए तैयार हो। अल्लाह अल्लाह, जिसके नाना जान आबे जमजम आबे कौसर बांटे, उनके नवासों पे पानी बांध, उनके नवासों पर पानी बांध। अब मामला आगे बढ़ता है, 3 रोज से पानी बंद है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर। कुछ लोग कहते इमाम हक पर थे, कुछ लोग कहते इमाम नाहक पर थे। अब तो हर तरह के लोग पैदा हो गए, लेकिन आइए फैसला करवाते, ना फैसला मैं करूंगा ना फैसला आप करेंगे, बल्कि फैसला वो करेगा जो करबला के मैदान में मौजूद था। फैसला वो करेगा जिसने यजीद के जुल्म सितम को भी देखा, जिसने हुसैन के सब्र को भी देखा, जिसने यजीद की दौलत को भी देखा, जिसने हुसैन के तहारत को भी देखा, जिसने यजीद की हुकूमत को भी देखा, जिसने हुसैन की नमाज को भी देखा, जिसने सारे मामलात को देखा। अब फैसला उससे करवाते हैं। यही हज़रत हुर है। हज़रत हुर जो है दौड़े दौड़े आते हैं, हज़रत हुर जो है भागे भागे आते हैं इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हुर क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हैं, हुर क्यों भागे भागे आ रहे हैं? क्योंकि अम्र बिन साद ने जो है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से कह दिया था या तो यजीद की बैयत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन यार तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये मुहर्रम की 9वीं तारीख थी, जिस दिन इब्ने साद, जिस दिन जो है अम्र बिन साद ने कहा था या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या तो बैयत करने के लिए तैयार हो जाओ, और अपने सिपाहियों को कह दिया था जाकर हमला कर दो, जाकर हमला बोल दो। जब सिपाही आगे बढ़े थे, हजरत अब्बास लमदार देते हैं, जाकर पूछते हैं तुम क्या करना चाहते
चाहते हो? अमर बिन साद कहता है हम हमला करना चाहते हैं। अब अब्बास लमदार कहते हैं मैं आका हुसैन से पूछ के आ रहा हूँ, मैं मौला हुसैन से पूछ कर आ रहा हूँ। आप दौड़े दौड़े जाते हैं, आप भागे भागे जाते हैं, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं ए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम आज 9वीं शब है और अमर बिन साद हमला करना चाहता है, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं जाकर उन सालिमों से कह दो आज हमें एक रात की मोहलत दे दे, हम इबादत करना चाहते हैं। हज़रत अब्बास लमदार जाते हैं और जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ए सालिमों हमें एक रात की मोहलत दे दो, हम इबादत करना चाहते हैं, हम नफल पढ़ना चाहते हैं। सालिमों ने कहा ठीक है एक रात की तुम्हें मोहलत देते हैं, एक रात की तुम्हें मोहलत देते हैं, उसके बाद सुबह जंग होगी। अब मुअस्सस साहब ने कहा रात का सन्नाटा है, रात के सन्नाटे में जो है काफिले के अंदर जो है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम है, आपकी बहन जो है मखदूमा ज़ैनब है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं ए बहन देखो ना कैसा इम्तिहान है, ए बहन देखो ना कैसे इम्तिहान है, ए बहन मैंने तुमसे एक बात छुपाई हुई थी तो तुम्हें बात बताना चाहता हूँ। क्या भाई तुमने मुझसे क्या छुपाया था? क्या एक दिन मौला एक दिन जो है अम्मी जान ने मुझसे कहा था ए बेटा हुसैन मेरी बात को गौर से सुन ले, एक दिन तू करबला के मैदान में होगा, तुझे अपनी औलाद को कुर्बान करना होगा, तुझे अपने भाई को कुर्बान करना होगा, तुझे अपने बेटे को कुर्बान करना होगा, तुझे अपने भतीजे को कुर्बान करना होगा। उस वक्त तेरे साथ जो है मेरी बेटी ज़ैनब भी होगी, मेरी बेटी को सब्र की ताकीद करना, मेरी बेटी का दिल मत टूटने देना, मेरी बेटी के दिल के राज रख लेना। इतना सुना तब मखदूमा ज़ैनब अरीज़ा पेश करती है ए आका हुसैन ए मौला हुसैन मैंने भी आपसे एक बात छुपाई थी, मैंने भी आपसे एक बात को छुपाई थी और वो बात ये थी कि मुझसे मौला अली ने कहा था, मुझसे अब्बा जान ने कहा था, मुझसे अब्बा जान ने कहा था एक दिन करबला का मैदान होगा और तेरा भाई तेरे तरह होगा। उस दिन अपने भाई का साथ का छोड़ा, अपने भाई के हौसले को बढ़ाना, अपने भाई के हिम्मत को बढ़ाना। ए भाई जब आप कूफा के लिए निकले थे आपने मक्का को छोड़ा था, आपने मदीने को छोड़ा था, तभी मुझे मालूम हो चला था कि मैं किधर जा रही हूँ, आप किधर जा रहे थे। लेकिन भाई मैंने सब किया, लगता है वो मंजिल आ गई है। दोनों भाई इबादत करते हैं, भाई भी इबादत करता है, बहन भी इबादत करती है। अब शुरू की सफेदी नमूदार होती है, फजर की अज़ान होती है, तयम्मुम करते हैं, तयम्मुम करने के बाद जो है मेरे इमाम नमाज पढ़ते हैं और जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तो क्या देखते हैं वो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, वो भागे भागे चले आ रहे हैं, वो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं ए हुर कहाँ आए हो? हुर आते ही जो है हुसैन पाक के कदमों में गिर जाते हैं, हुसैन पाक के चरणों में गिर जाते हैं और कदमों में गिरने के बाद जो है अरीज़ा पेश करते हैं ए हुसैन इब्न अली मुझे माफ कर दीजिए, ए हुसैन इब्न अली मेरी खताओं को माफ कर दीजिए, ए हुसैन इब्न अली मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। ए हुसैन इब्न अली वो वही हो जिसने सबसे पहले आपका रास्ता रोका था, ए हुसैन इब्न अली आप वही मैं वही हूँ जिसने अपने 300 साथियों के साथ जो है आपको करबला में घेरा है। ए हुसैन इब्न अली मैं वही हूँ जिसने आपका सबसे पहले रास्ता रोका है। लेकिन हुसैन इब्न अली मैं अभी तक ये सोच रहा था ये जंग जो है सियासत की जंग है, किसी न किसी मोड़ पर जाकर जो है अपने मौजू को चेंज कर देगी, अपना पहलू बदल देगी। लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि सियासत की जंग नहीं है, ये तो दौलत की जंग है, ये आपके खून के प्यासे है। इसलिए मैं अपने खैमे में खड़ा था तो मैंने देखा इधर मेरा खैमा है, इधर आपका खैमा है, मैं बीचों बीच में खड़ा हूँ। मैं ये देख रहा था एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है। अब फैसला मुझे करना था, मुझे जन्नत चाहिए या मुझे दोज़ख चाहिए। अब फैसला मुझे करना था, अब डिसाइड मुझे करना था, अब निर्णय मुझे लेना था कि जन्नत को एक्सेप्ट करना है या दोज़ख को एक्सेप्ट करना है, जन्नत को इग्नोर करना है या दोज़ख को इग्नोर करना है। मेरे इमाम में बीचों बीच में खड़ा था, एक तरफ जन्नत थी, एक तरफ दोज़ख थी। मैंने दोज़ख को लात मार दिया, मैंने जन्नत को एक्सेप्ट कर लिया है, आप एक्सेप्ट कर लिया है। आपकी गुलामी में आया हूँ, मुझे आप गुलामी में कबूल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि हुर जो सिपह सालार है यजीदी खैमे के 300 साथियों के सरदार हैं, कहते इमाम आपके कदमों में आ गया,
आपकी तरफ जन्नत इधर दोजख है, मैंने दोजख को छोड़ दिया, मैंने जन्नत को अपना लिया। मेरे इमाम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इमाम मेरी खताओं को माफ कर दीजिए, मेरे इमाम मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मेरे इमाम आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हारी खताओं को माफ किया, अब माफी का परवाना मिल जाता है। अरीसा पेश करते हैं, आका हुसैन मौला हुसैन माफी का परवाना तो मिल गया है, अब लड़ने की इजाजत दे दीजिए, कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, पहले जंग की शुरुआत जो है वो हमारी तरफ से नहीं की जाएगी, शुरुआत उधर से होगी। इतना सुनने के बाद जो है मुहद्दिस हुर कहते हैं, ए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जो है आप मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ और उन्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जब आप घोड़े पे बैठकर जो है यजीदियों की तरफ जाते हैं, यजीदी सोच रहे हैं वो मनाने के लिए गए थे, वो समझाने के लिए गए थे, लगता है समझा के आ रहे हैं, लगता है बता के आ रहे हैं, लगता है मना के आ रहे हैं। साथियों ने कहा, हुर क्या तुमने मना लिया है, ए हुर क्या तुमने उन्हें समझा दिया है? हुर जवाब देते हैं, ए जालिमों सुनो सुनो, ये कोई दुनियादार नहीं है, ये मदीने के ताजदार के नवासे है, ये हुसैन इब्ने अली है, जिनको नाना जान ने जो है अपने कंधे पे बैठाया था, जिनको नाना जान ने जो है अपने पीठ पे बैठाया था, जिनको नाना जान ने जो है जिनके गले को चूमा था, जिनको नाना जान ने जो है अपने मोहब्बत से गले लगाया था। अरे ये हुसैन इब्ने अली है, अरे इनसे लड़ोगे तो कहाँ जाओगे, इनसे मुकाबला करोगे तो कहाँ जाओगे? अरे तुमने तो खत भेज कर बुलाया था, तुमने खुदूद के जरिए बुलाया था, लेकिन अब यहाँ आकर धोखा देते हो। एक रूपिया सोचो मरने के बाद क्या होगा, ये दौलत कब तक काम आएगी, ये मालो से कब तक काम आएगा, ये पैसा कब तक काम आएगा? तो मुअस्सस सामी ने कहा, यजीदियों के खैमे से एक ने कहा, अरे हुर तुम्हें क्या हो गया है, हम तुम्हें दानिशमंद समझते थे, हम तुम्हें माइंडेड जानते थे, हम तुम्हें दानिशमंद समझते थे, लेकिन तुम्हारा मामला क्या हो गया है, तुम पलट क्यों गए हो? अरे तुम्हें मालूम है उसमें 72 है और वो सारे के सारे जो कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन तुमने जो है यजीद का दामन क्यों छोड़ दिया? तुम मोहतरमा सा खुद इरशाद फरमाते हैं, अरे मैं देख रहा था एक तरफ जन्नत है एक तरफ दोज़ख है, मैंने दोज़ख को छोड़ दिया और मैंने जन्नत पे सेट कर लिया। सुभान अल्लाह, बहुत लौटते हैं। अब ये देखिए मोहतरमा सा जंगे खंदक के मौके पर जो है साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दिया था, उनका बेटा जो है अम्र बिन साद है। इसने कहा, देखो सबसे पहला तीर जो है मैं हुसैनी काफिले की तरफ मार रहा हूँ, तुम गवाह रहना, यजीद के सामने तुम गवाही देना कि सबसे पहला तीर जो है अगर कोई मार रहा है तो अम्र इब्ने साद मार रहा है, इसके तुम गवाह हो जाना, ताकि मुझे इनाम मिलेगा, ताकि मुझे इकराम मिलेगा। अब मोहतरमा साहब जब पहले इधर से हमला किया गया, जब तीरों की बारिश की गई, तो तीरों की बारिश करने के बाद जो है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के बारगाह में जो है हजरत हुर जाते हैं, जाने के बाद अलीज़ा पेश करते हैं, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जो है आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ, आप पर फिदा होना चाहता हूँ, अगर आप जो है मुझे इजाजत दे दें तो मैं भी दिन पे कुर्बान होना चाहता हूँ। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, हुर मैंने तुम्हारी खताओं को माफ कर दिया है, मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। लेकिन हुर कहते, ए इमाम मैंने आपका रास्ता रोका था, मैं लड़ना चाहता हूँ, आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, ए हुर जाओ मैंने तुम्हें इजाजत दे दिया है, जाकर दिन पे कुर्बान हो जाओ। अब मुअस्सस सामी ने कहा, हजरत हुर घोड़े पे तैयार होते हैं और घोड़े पे तैयार होने के बाद जो है घोड़े पे एड़ लगाते हैं और घोड़े को एड़ लगाने के बाद जो है दुश्मनों के बीच में पहुंचते हैं और यलगान लगाते हैं, तुम में है कोई ऐसा जाहिर जो मेरे मुकाबले में आ सके, तुम में है कोई ऐसा बहादुर जो मेरे मुकाबले में आ सके। एक यजीदी आगे बढ़ता है, हुर की तलवार चलती है, यजीदी की गर्दन कटती है, यजीदी जमीन पे गिरता है, दूसरा सालिम आता है, हुर की तलवार चलती है, तीसरा आदमी आता है, हुर की तलवार चलती है, चौथा आदमी आता है, हुर की तलवार चलती है, पांचवा आदमी आता है, हुर की तलवार चलती है, गर्दनें कट रही है, यजीदी जहन्नम में जा रहे हैं। इब्ने साद परेशान है, इब्ने साद हैरान है, शिमरे परेशान है, खोली परेशान है, या अल्लाह ये क्या हो रहा है? अपने सिपाहियों कहता है, अब इसे मामूली तुम हुर ना समझना, इसने अपने गले में जो है हुसैन पाक के गुलामी का पट्टा पहन लिया है, अब इसे मामूली ना समझना। अरे तने तनहा लड़ोगे तो सबको मारता जाएगा। सारे लोग मिलकर एक साथ हमला कर दो, जालिमों ने हमला कर दिया, एक साथ तीरों की बारिश कर दिया।
गया, आप जख्मी हो जाते हैं और जैसे घोड़े से गिरते हैं आवाज लगाते हैं आका हुसैन आए, मौला हुसैन आए, दाता हुसैन आए, आका हुसैन आए। मेरे इमाम दौड़े दौड़े जाते हैं, मेरे इमाम भागे भागे जाते हैं, हज़रत हुर को जो है अपने होद में लेते हैं और मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ए मेरे इमाम बहुत तेज की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाए। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं आए हुर अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं पीना है, अरे अब दुनिया से जाने के बाद जो है तुम्हें नाना जान के हाथ से जामे कौसर पीना है। नारे रिसाला मसल के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हज़रत हुर शहीद हो रहे हैं, हज़रत हुर के शहीद होने के बाद जो है मुस्लिम बिन अकील के बेटे आ जाते हैं, अलीसा पेश करते हैं आका हुसैन, मौला हुसैन हमें इजाजत दे दीजिए, हम भी कुर्बान होना चाहते हैं, हम भी आप पर फिदा होना चाहते हैं, हम भी इस्लाम के लिए गर्दन कटाना चाहते हैं। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं ए यतीम बच्चों में तुम्हें कैसे भेज दूं, अरे अभी थोड़े ही दिन तो हुआ है, तुम्हारे बाप का गम जो है तो दिल से भूला नहीं गया है, तुम भी करबला के मैदान में जाना चाहते हो, तुम भी दुश्मनों के बीच में जाना चाहते हो, मेरे बच्चों में तुम्हें कैसे भेज दूं। लेकिन वो मुस्लिम बिन अकील के बेटे कहते हैं कि आका हुसैन, ए मौला हुसैन अगर आप हमें नहीं भेजेंगे तो कल क़यामत के दिन जो है अगर अब्बा हुजूर ने पूछ लिया मेरा भाई हुसैन तने तरह था, तुमने अपनी जान बचा लिया है, तो मैं कौन सा जवाब दूंगा। इसलिए ए आका हुसैन, ए मौला हुसैन हमें एक इजाजत दे दीजिए, हम भी कुर्बान होना चाहते हैं। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं जाओ बेटो दीन पे कुर्बान हो जाओ, जाओ बेटो दीन पे शहीद हो जाओ। मुस्लिम बिन अकील के बेटे जाते हैं, बड़े बहादुरी के साथ लड़के हैं, तमाम जहां सूफियों को जो है जहन्नम में भेजने के बाद जो है जब तीरों की बारिश होती है, जब नेज़ों की बारिश होती है, जब घोड़े से गिरते आवाज लगाते हैं आका हुसैन आइए, मौला हुसैन आइए, दाता हुसैन आइए। मेरे इमाम दौड़े दौड़े जाते हैं, मेरे इमाम भागे भागे जाते हैं, मुस्लिम बिन अकील के बेटों की लाश को लाकर जो है खैमे में लेटाते हैं। अभी में लिटा ही रहे हैं कि मुस्लिम बिन अकील के भाई आ जाते हैं, अरीसा पेश करते हैं आका हुसैन हम भी जाना चाहते हैं, मौला हुसैन हम भी जाना चाहते हैं, आपके दिन पे कुर्बान होना चाहते हैं, आपके दिन पे फिदा होना चाहते हैं। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं दिल तो नहीं चाह रहा है लेकिन तुम जिद कर रहे हो, जाओ दिन पे कुर्बान हो जाओ, जाओ दिन पे फिदा हो जाओ। अब मुस्लिम बिन अकील के भाई भी जाते हैं, दिन पे कुर्बान हो जाते हैं, दिन पे फिदा हो जाते हैं। यानी जितने अक़रबा थे, यानी जितने करीबी थे, जो मदीने से आए थे, जो मक्का से आए थे, सारे के सारे लोग दिन पे कुर्बान हो जाते हैं, हुसैन पाक में कुर्बान हो जाने चाहते हैं। अब सिर्फ अहले बैत के खानदान के लोग पहुंचते हैं, आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं, और जब आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं ना इमाम अली बकाबल इस्लाम तैयार होते हैं जालिमों के बीच में जाने के लिए जो है, दुश्मनों से टकराने के लिए जो है। लेकिन जैसे मेरे इमाम जाना चाहते हैं वैसे ही इमाम की बारगाह में जो है एक तकरीबन 15 साल का लड़का आता है, आने के बाद इमाम की बारगाह में रिज़ा पेश करता है इमाम अली बकाबल इस्लाम जो है आपकी बारगाह में कुछ मांगने के लिए आया हूँ, इमाम अली बकाबल इस्लाम जो है आपकी बारगाह में कुछ लेने के लिए आया हूँ। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं अपने चाचा के पास क्या लेने के लिए आए हो, क्या पर याद करने के लिए आए हो, आने वाला कोई और नहीं है, आने वाले काशी बिन हसन है, आपके भतीजे हैं, रिज़ा पेश करते हैं इमाम अली बकाबल इस्लाम जो है आपको इजाजत दे दीजिए। सारे लोग कुर्बान हो गए हैं, मैं भी दिन पे कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं भी दिन पे फिदा होना चाहता हूँ, मैं भी दिन पे शहीद होना चाहता हूँ। इमाम अली बकाबल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं मेरे भतीजे मुझसे ऐसी बातें ना कर, अरे मेरा दिल बाहर आते चला जा रहा है, मेरा दिल कांपता चला जाता है, मेरा दिल जो है मेरा दिल कांपता चला जा रहा है। अरे तू मेरे भाई की निशानी है, तू भाई हसन की निशानी है, अरे तू शहीद हो गया तो मेरे भाई हसन, अब मेरे भाई हसन की जो है नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, तुझे कैसे मैं करबला के मैदान में भेज दूं, कैसे मजलिस लड़ने के लिए भेज दूं। लेकिन भतीजा रिज़ा पेश कर रहा है कि आका हुसैन, ए मौला हुसैन जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ था ना, मैंने कभी अपने आप को यतीम महसूस नहीं किया था। बाप के इंतकाल के बाद बेटा यतीम हो जाता है, लेकिन मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मैंने अपने आप को यतीम महसूस न किया क्योंकि आपका साया मेरे सर पे था, मैं आपको बाप समझता था। लेकिन आज मुझे अपने बाप की याद आ रही है, आज मुझे बाप की याद आ रही है। अगर आज मेरा बाप होता तो मुझे ये महरूमी ना मिलती, मुझे इजाजत मिल जाती
कुर्बान करने के लिए आका हुसैन रे मौला हुसैन अगर इजाजत नहीं देंगे तो अगर कल मैदान महशर नाना जान ने पूछ लिया, अगर आका हुसैन मौला हुसैन अगर अब्बा जान ने पूछ लिया, ए भाई मेरे बेटे कासिम बता तेरा भाई हुसैन तेरे तरह था, तूने अपनी जान बचा लिया है, तूने अपनी जान को बचा लिया है, तेरे भाई पे कुर्बान नहीं हुआ है, तो अब्बा को क्या जवाब दूंगा? अब्बा के सामने कौन मुंह लेके जाऊंगा? इसलिए आका हुसैन मौला हुसैन आप इजाजत दे दीजिए, मैं दीन पे कुर्बान होना चाहता हूँ। इतना सुनना कबूतर बसा तेरे इबाबिल शान करवाते हैं, मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा। पहले जाकर अपने अम्मी जान से पूछ ले, जाकर अपने अब्बी से पूछ ले, अगर तेरी बात कहती है उसके बाद तू मेरे पास चले आया। बेटा बयान करता है आका हुसैन आपके पास आने से पहले जो है मैं अब्बी जान की बारगाह में गया था, और उस माँ की अजमत को सलाम, उस माँ के मर्तबे को सलाम, उस माँ की शान को सलाम। अरे जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता है तो लोग जो है लोग मशवरा दिया करते हैं, लोग सहूलियतें दिया करते हैं, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया है लेकिन तेरा बेटा जो है अब तेरा सहारा बनेगा, तेरा बेटा जो है तेरे आंखों का तारा बनेगा, तेरा बेटा जो है तेरे दिल का चैन बनेगा, तेरा बेटा जो है तेरे दिल का करार बनेगा। अरे वही बेटा जब माँ की बारगाह में जाता है, अम्मी जान करबला के मैदान में आना चाहता हो, दिल पे शहीद होना चाहता हो, दिल पे कुर्बान होना चाहता हो, अपनी जान न्यौछावर करना चाहता हो, तो माँ जो है रोकती नहीं है, ए बेटा जाकर कुर्बान हो जा, ए बेटा जाकर शहीद हो जा। अब हमारी मकाम अलैहिस्सलाम से हसन बिन कासिम व कासिम बिन हसन जो है अरीजा पेश करते हैं, आका हुसैन अम्मी से पूछ के आया हो, फूफी से पूछ के आया हो, तो मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं इजाजत नहीं दूंगा, इजाजत नहीं दूंगा। ये सुनना तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, ये बिल्कुल अफसुर्दा हो जाता है, गमज़दा हो जाता है। कभी एक बात याद आती है, कभी एक बात ज़हन में आती है, जब मेरे पापा हसन जो है दुनिया से जाने वाले थे, दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया था और कहा था बेटा हसन, ये बेटा कहा था बेटा कासिम, इस तावीज़ को जो है अपने गले में बांध लेना, जब सबसे बड़ी परेशानी आए, जब सबसे बड़ी मुसीबत आए, जब सबसे बड़ी परेशानी में फंस जाना, इस तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना, इस तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना। अब इससे बड़ी मुसीबत क्या आएगी, अब इससे बड़ी परेशानी क्या आएगी, अब इससे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? जब मोहतरमा साहब तावीज़ को उतारते हैं और तावीज़ को उतारने के बाद खोलते हैं और खोलने के बाद पढ़ते हैं, उसमें मौला हसन ने लिखा था, आका हसन ने लिखा था, आपके अब्बा जान ने लिखा था, ए बेटा हासिम कल करबला का मैदान होगा, मेरा भाई तने तन्हा होगा, तो अपनी जान को बचाना नहीं बल्कि मेरे भाई के लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर देगा, नाना की शरीयत के लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर देगा, नाना के दिन के लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर देगा। जैसे ये चिट्ठी मिलती है चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आका हुसैन की बारगाह में जाते हैं, मौला हुसैन की बारगाह में जाते हैं, आका हुसैन मौला हुसैन ये चिट्ठी आप पढ़ लीजिए, ये अब्बा जान ने दिया था। आप चिट्ठी पढ़ते हैं, चिट्ठी पढ़ने के बाद जो है आप दुआएं देते हैं, परमिशन मिल जाती है, और जैसे परमिशन मिलती है आप करबला के मैदान में जाते हैं, एक माँ सजा रही है, एक फूफी सजा रही है, एक माँ को सजाती है, जब बेटा दूल्हा बनता है एक माँ सजाती है, जब बेटा जवान होता है एक माँ सजाती है, जब घर में दुल्हन आती है एक माँ सजाती है, जब बेटा बड़ा हो जाता है लेकिन माँ यहाँ सजा रही है अपने बेटे कुर्बान करने के लिए, अपने बेटे को जो है दिन पे कुर्बान करने के लिए एक माँ सजा रही है। बेटा तैयार होता है और बेटा तैयार होने के बाद जो है जब करबला के मैदान में पहुंचता है, जब करबला के वादी में पहुंचता है, करबला के वादी में पहुंचने के बाद जो है जब सालिम देखते हैं, देखने के बाद जो है अमर बिन साद बोल पड़ता है, अमर बिन साद कहता है एक बहुत बड़े पहलवान थे जिसका नाम अरसक था, अरसक पहलवान से कहा एक पहलवान तू इसके मुकाबले में जा, तू इससे लड़ने के लिए जा। अरसक पहलवान कहता है मैं तो बहुत बड़ा बहादुर हूँ, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, अरे मैं बच्चे के मुकाबले में जाऊँ, मैं बच्चे से लड़ने के लिए जाऊँ, मैं बच्चे से मुकाबले के लिए जाऊँ, अरे ये तो मेरी बेइज्जती है। अमर बिन साद कहता है अरे इसे मामूली बच्चा न समझना, इसके रगों में जो है वो फातिमा खैबर का खून है, इसके रगों में जो है वो फातिमा ज़हरा का खून है, इसके रगों में जो है हसन इब्ने अली का खून है, इसे मामूली न
समझा आसक देता है चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा, मैं इसे लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। इससे लड़ने के लिए मेरा बेटा काफी है। अपने एक बेटे को बुलाता है, मुकाबले के लिए भेजता है। ऐसे बेटा मुकाबले में जाता है, हमला करना चाहता है। हजरत कासिम हसन जो है हमले की काट करते हैं और एक ही तलवार में जो है उसकी गर्दन को काट कर जमीन में डाल देते हैं। अब दूसरा बेटा जाता है, उसकी भी गर्दन काट देते हैं। तीसरा बेटा जाता है, उसकी भी गर्दन काट देते हैं। चौथा बेटा जाता है, उसकी भी गर्दन काट देते हैं। अब पाप फिर मिला जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है, बहादुर पाप है, घोड़े पे सवार होता है और जाने के बाद कहता है ये बच्चे मरने के लिए तैयार हो जा, ये बच्चे मरने के लिए तैयार हो जा, ये बच्चे मरने के लिए तैयार हो जा। मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ कि आज तक मुझसे लड़ने वाला बच नहीं पाया है। अरे तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जा। इतना सुनना था, इतना सुनना था। हजरत कासिम जो इरशाद फरमाते हैं, अपने आप को बड़ा बहादुर कहता है, अरे तेरे घोड़े की ज़ेन तो खुली हुई है। इतना सुनना था। वो काफिर ज़ेन को देखता है, घोड़े की ज़ेन को देखता है, तब तक कासिम बिन हसन की तलवार चमकती है और एक ही बार में जो है काफिर को काट कर जो है जमीन में गिरता हुआ छोड़ देता है। काफिर को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं जमीन पर। उसने कहा तुम मुझे धोखे से मारे हो या तुमने भी तो हमें धोखे ही से बुलाया है। अब उसके बाद सालिमों ने कहा अब इन्हें मामूली न समझा, इसके रगों में फातह खैबर का खून है। एक तरफ से हमला कर दो, तीरों की हमला कर दो, नेज़ों से हमला कर दो, पर्चियों से हमला कर दो। अब सालिमों ने हमला कर दिया है, तीरों की बारिश कर दिया है। आप जख्मी होते हैं और जख्मी होने के बाद जब आप घोड़े से गिरते हैं आवाज लगाते हैं आका हुसैन आइए, मौला हुसैन आइए, दाता हुसैन आइए, दाता हुसैन आइए, आका हुसैन आइए, मौला हुसैन आइए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए जा रहे हैं, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम भागते हुए जा रहे हैं, अपने भतीजे को अपने हाथ में लेते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए मेरे भाई की आंखों की ठंडक तो मेरे भाई की पहचान था। अब मुझे कहाँ पाऊंगा? कासिम मैंने जो कुर्बान किया है तो दीन के लिए कुर्बान किया है। भतीजे की लाश को लेते हैं, लाश को लेने के बाद जब खैमे में लौटते हैं, अभी खैमे में आए थे, खैमे में बैठे थे, अंदर से मखदूमा ज़ैनब आती है। मखदूमा ज़ैनब आने के बाद अरीज़ा पेश करती है, ए भाई हुसैन, ए मौला हुसैन, ए दाता हुसैन, आपकी बारगाह में आपकी बहन आई है, आपसे कुछ मांगने के लिए आई है, आपसे कुछ लेने के लिए आई है। तेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं ए बहन ये कैसा इम्तिहान ले रही है? अरे कुछ लेना था तो मक्का की वादियों में ले लेती, अगर कुछ मांगना था तो मदीने में मांग लेती। आप तेरा भाई गरीबुल वतन है, आप तेरा भाई मुसाफिर है, आप तेरा भाई तुझे क्या दे सकता है, आप तेरा भाई तुझे क्या नवा सकता है? तो तोबा सैयदा बरीज़ा पेश करती है, ए भाई आका हुसैन, ए मौला हुसैन, आपकी बारगाह में कुछ लेने के लिए आई हूँ, फरियाद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहन जब भाई से बात करती है ना तो भाई कभी काम नहीं करता है। ए आका हुसैन, ए मौला हुसैन, जिस फातिमा का दूध आपके रगों में है उसी फातिमा का दूध मैंने भी पिया है, इस बाप का खून आपकी रगों में है उसी बाप का खून मैंने मेरे भी रगों में है। मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, अपने दोनों नन्हे फूल को जो है आपकी बारगाह में लेके आई हूँ। इन दोनों बच्चों को जो है अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। ये दोनों मेरे औनो मोहम्मद जो है ये आपकी बारगाह में आए हैं, परमिशन लेने के लिए आए हैं। अगर परमिशन मिल जाए तो ये भी जाकर दीन पे कुर्बान हो जाए, ये भी जाकर दीन पे पिदा हो जाए। तेरे इमाम कुत्ते पे चैन हो जाते हैं, तेरे इमाम कुत्ते पे करार हो जाते हैं। ए बहन ज़ैनब अपने भाई का कैसे इम्तिहान ले रही है? ए बहन ज़ैनब अपने भाई को किस ऐसी परेशानी में डाल रही है? अरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अभी दुनिया नहीं देखा है। दुश्मनों के बीच में कैसे इन्हें भेज दूं, दरिंदों के बीच में इन्हें कैसे भेज दूं, लड़ने के लिए इन्हें कैसे भेज दूं? लेकिन बहन ज़ैनब ने कहा ए भाई तुम्हारी बारगाह से जो है कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है, आज भी तुम मुझे खाली हाथ न भेजना। मेरे बच्चों को कबूल कर लो, मेरे बच्चों को कबूल कर लो। इमाम अली मकाम कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बच्चे पुकार पड़ते हैं, ए बाबू जान हमें परमिशन दे दीजिए, ए बाबू जान हमें बच्चा न समझिए, हम जालिमों को काट के रख देंगे, हम जालिमों को मार के रख देंगे, हमें बच्चा मत समझना। ए मामू जान हमें परमिशन दे दीजिए। आका हुसैन मौला हुसैन की आंखों से आंसू बह रहा है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं ए बहन ज़ैनब सुनो सुनो, मैंने इन्हें अपने बारगाह में कबूल कर लिया है, अब परमिशन में दे देता हूँ, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ। ये दुश्मनों के नरके में क्या करने के लिए जाएंगे? ये दुश्मनों के बीच में क्या करने
करने के लिए जाए थे, ये दरिंदों के बीच में क्या करने के लिए जाए थे। मखदूमा ज़ैनब अरीज़ा पेश करती है, ये आका हुसैन है मौला हुसैन, अपनी बहन को खाली हाथ न भेजिए। ये आका हुसैन, ये बहन जो है अपने दामन को फैलाकर आपसे कुछ मांग रही है, अपने बहन को खाली हाथ न भेजिए, अपने बहन को खाली हाथ न लौटाइए। इमाम अली मकाम इस्लाम कहते हैं, ए मौला ये कैसा इम्तिहान है, ए मौला ये कैसा इम्तिहान है, ए मौला ये कैसा इम्तिहान है। इमाम अली मकाम इस्लाम जो है परमिशन तो नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं, इजाजत मिल गई है। अब देखो मोहतरमा साहब, अगर बेटा आपके स्कूल जाता है तो माँ बाप तैयार करते हैं, बेटा अगर बम्बई जाता है तो माँ बाप पैकिंग करते हैं, बेटा अगर सऊदी जाता है तो माँ बाप पैकिंग करते हैं। अगर बेटा दूल्हा बनता है तो कभी माँ से जाती है, कभी बहन से जाती है। अरे हम अपने घर वाले से जाते हैं जब वो किसी खुशी के मौके पे जाते हैं। लेकिन सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा, सैयदा मखदूमा ज़ैनब जो है अपने दोनों बच्चों को साथ लेती है और बच्चों को साथ लेने के बाद जो है खैमे के अंदर जाती है, उन्हें तकबीर करती है, या तो पानी है कि पिला है, या तो खाना है खिला है। ज़बानें सूख गई है, ज़बानें प्यास से लपट गई है। दोनों बच्चों को तैयार करती है और जब दोनों बच्चे तैयार होते हैं ना तो नन्ही नन्ही तलवार जो है दोनों बच्चों के हाथ में थमाती है। थमाने के बाद कहती है, ए मेरे बच्चों जाओ दिल पे कुर्बान हो जाओ, ए मेरे बच्चों जाओ दिल पे फिदा हो जाओ। माने परमिशन दे दिया है, दोनों बच्चे जा रहे हैं। मखदूमा ज़ैनब अली की बेटी बनकर जो है दोनों बच्चों को बेच रही है। अभी दोनों बच्चे थोड़ी ही दूर गए थे, अभी दोनों बच्चे कुछ ही लम्हे चले थे, अभी थोड़े दूर ही गए थे। बाकी बच्चा चाहत पड़ती है, अरे माँ की मोहब्बत के है। अगर बेटा बीमार हो जाता है तो माँ पूरा नहीं करती है, अरे माँ की मोहब्बत के है। चाहे नींद हो चाहे गर्मी हो, अगर बच्चा रो दिया करता है तो माँ रात बचाया करती है, आंचल की हवा दिया करती है, पंखे की हवा दिया करती है। अरे माँ की मोहब्बत तो ये है कि बेटा अगर बीमार हो जाए तो मराद बचाया करती है, माँ बेचैन हुआ करती है। दोनों बच्चे जा रहे हैं, ये बच्चे जा रहे हैं, अब ये बच्चे वापस नहीं आएंगे, ये दुश्मनों के बीच में जा रहे हैं। माँ की ममता जाग पड़ती है। जब माँ की ममता जागती है ना, जब माँ की मोहब्बत जागती है ना, माँ इरशाद फरमाती है, ये अनु मोहब्बत जरा थोड़ा चले आओ, ये अनु मोहब्बत जरा पास चले आओ, ये अनु मोहब्बत आकर अपने बाग के दिल से लग जाओ, ये अनु मोहब्बत आके अपने बाग के सीने से लग जाओ, ये अनु मोहब्बत आके अपने बाग से एक बार मोहब्बत से लिपट जाओ। दोनों बच्चे आते हैं, माँ के आंखों से आंसू बहते हैं, माँ के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन माँ आंसुओं पे कंट्रोल कर रही है। ए मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, ए मेरी माँ बहनों तुम भी सोचो, तुमसे हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, आज तुम्हारे बच्चे सोते हैं ना, तुम बच्चों को नमाज के लिए नहीं सिखाती हो, मेरे बच्चे सो रहे हैं, आज तुम बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए नहीं कहती हो। ए मेरी माँ बहनों देखो, तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत है ना, तुम्हें अपने औलाद से प्यार है ना, लेकिन मखदूमा ज़ैनब भी तो अपने बच्चों से प्यार करती है, मखदूमा ज़ैनब भी तो अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन अपने बच्चों को कुर्बान कर रही है, अपने बच्चों को दीन पे कुर्बान कर रही है। कुर्बान करने की वजह क्या है? ताकि दीन बाकी रह जाए। कुर्बान करने की वजह क्या है? ताकि शरीयत बाकी रह जाए। कुर्बान करने की वजह क्या है? ताकि नमाज बाकी रहे। कुर्बान करने की वजह क्या है? ताकि रोजा बाकी रहे। मखदूमा ज़ैनब जो है अपने दिल पे पत्थर रखे, अपने दोनों बच्चों को जो है करबला के मैदान में भेज रही है। ए मखदूमा ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम, ए मखदूमा ज़ैनब तेरे तहारत को सलाम, ए मखदूमा ज़ैनब तेरी सुन्नत को सलाम, ए मखदूमा ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, ए मखदूमा ज़ैनब तेरे ज़हन को सलाम, ए मखदूमा ज़ैनब तेरी मोहब्बत को सलाम, ए मखदूमा ज़ैनब तेरी बहादुरी को सलाम, ए मखदूमा ज़ैनब तेरी बहादुरी को सलाम। तूने अपने बच्चों को जो है दिन पे कुर्बान किया है। अब दोनों बच्चे तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद जो है नन्ही तलवार लेते हैं, छोटी छोटी तलवार लेते हैं, करबला के मैदान में जाते हैं। सालिम देख कर हंसता है, शिमर हंसता है, शिमर बोलता है, ए हुसैन क्या तेरे काफिले में अब नौजवान खत्म हो गए क्या, जो तू बच्चों को भेज रहा है? दोनों बच्चे बोलते हैं, अरे हमें बच्चा ना समझना, हम अली के खानदान के हैं, अगर माँ का दूध दिया है तो मेरे मुकाबले में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से शिमर ने कहा, क्या जवान खत्म हो गए?
जो अब बच्चों को भेज रहा है। बच्चों ने कहा माँ का दूध पिया कि मेरे सामने आकर दिखा, हमें बच्चा ना माँ समझना। दोनों बच्चे आगे बढ़ते हैं, जालिमों को तरस नहीं आती है, सिपाहियों से कहते बच्चों से लड़ने के लिए इन बच्चों को शहीद कर दो, इन बच्चों को कत्ल कर दो। जालिमों ने हमला कर दिया, तीरों से हमला कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी गर्दनें हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, घोड़े से गिरते हैं, आवाज लगाते हैं मामू जान मामू जान मामू जान मामू जान। जब आपकी भांजी आपको आवाज देती है ना तो मामू बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उन बच्चों ने घुराया होगा, जब उन बच्चों ने आवाज दिया होगा बाबू जान आइए, बाबू जान आइए, मेरे बाप दौड़े दौड़े जाते हैं, मेरे बाप भागे भागे जाते हैं। दोनों नन्ही लाशों को लेते हैं, अपने हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के बाद जो है खैमे में लिटा देते हैं। और जब खैमे में लिटा देते हैं ना, एक माँ का दिल ही तो देखो, माँ ने दिल में पत्थर रख के जो है कुर्बान होने के लिए भेजा था, माँ ने दिल में पत्थर रख के जो है शहीद होने के लिए भेजा था, माँ ने दिल में पत्थर रख के जो है दीन की अजमत के लिए कुर्बान होने के लिए भेजा था। अब माँ ने जब देखा तो मोहब्बत आ गई है, कभी बेटे के जुल्फों को साफ कर रही है, कभी बेटे के खून को साफ कर रही है, कभी बेटे के चेहरे को साफ कर रही है, कभी बेटे के कपड़े को देख रही है। या मोहम्मद अब तुम मुझे नहीं मिलोगे, या मोहम्मद अब मुझसे मोहब्बत कौन करेगा, या मोहम्मद अब मुझे माँ कौन कहेगा, या मोहम्मद अब मेरे आंचल से कौन खेलेगा, या मोहम्मद अब मेरी मौत पर मुझसे मोहब्बत कौन करेगा, या मोहम्मद अब मुझसे प्यार कौन करेगा, या मोहम्मद अब तुमसे मुलाकात क्या होगी, या मोहम्मद ने एक माँ ने तुम्हें कुर्बान किया है। अरे हर माँ औलाद से मोहब्बत करती है, हर बाप ने बेटों से मोहब्बत करती है, हर बाप ने बेटी से मोहब्बत करती है। अरे वो माँ ही कैसे हो सकती है जो अपने औलाद से मोहब्बत न करे, अपने बेटे या बेटी से मोहब्बत न करे। लेकिन ए मोहब्बत, अगर मैंने तुम्हें कुर्बान किया है तो नाना जान के शरीयत के लिए कुर्बान किया है, दीन की अजमत के लिए कुर्बान किया है, तो दीन की अजमत के लिए कुर्बान किया है। मोहतरम मज़ाद वक्त ज्यादा हो रहा है, इंशाअल्लाह आज की तकरीर यहीं तक। उसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे शोहदाए करबला को शहीद किया गया, आपके बच्चों को शहीद किया गया। उसके बाद कैसे लोग जो है मदीना शरीफ तक पहुंचते हैं और उनके बाद यज़ीदियों का हाल क्या होता है, इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपको बता कर जाऊंगा। लेकिन आगे एक मरतबा मोहब्बत का दुआ पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना व नबियना मौलाना सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर नाते पाक की समाप्त करें। हुसैन इब्न अली करबला, हुसैन इब्न अली मदीना शरीफ से करबला क्यों गए थे? अभी तक जो है नस्ल में समाप्त किया था, अब नस्ल में समाप्त कर लिया। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना, जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। मिलेगा न तारी, मिलेगा न तारी तुम्हें ऐसा गाजी, मिलेगा न तारी तुम्हें ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद के जान की बाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगी न तारी तुम्हें ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद के जान की बाजी। दिखाए कोई मुझे तो ऐसा नमाजी, दिखाए मोई, दिखाए कोई उन्हें के जैसा नमाजी,
دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے محمد پہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے بڑی ناز سے جن کو پالا نبی نے بڑی ناز سے جن کو پالا نبی نے جنہیں رات پل کو پہ مولا علی نے جنہیں رات پل کو پہ مولا علی نے بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے جنہیں رات پل کو پہ مولا علی نے جنہیں پاک مانے ہے جھولا جھلایا جنہیں پاک مانے ہے جھولا جھلایا جنہیں پاک مانے ہے جھولا جھلایا وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں جھولا جھلایا وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج گردن کٹانے چلے یہی کہے کہ اکبر یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی ادھر ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی ادھر ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی ادھر ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی ادھر ستمگر کیا دیتا ہے دھمکی جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی علی کا وہ تیور دکھانے چلا پہ سب کچھ لٹانے چلا ہے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلا ہے حسین اپنی گردن کٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں اور محترم حضرات اب تو محفل دو ہی دن بچی ہے ایک آج کی محفل ایک کل کی محفل ایک آج کی محفل ایک کل کی محفل انشاءاللہ تعالی ایسی محفل منائیں گے ایسی محبت دکھائیں گے اور یہ ہمیں یقین ہے کہ حسنین کا صدقہ بھی پائیں گے کیونکہ جب حسنین کا ذکر ہوتا ہے جب نبی کے آل کا ذکر ہوتا ہے جب حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں ایک انسان کیوں روتا ہے غم پر کا ستاتا ہے غم کربل ستاتا ہے غم کربل ستاتا ہے غم پر کا ستاتا ہے غم پر کا ستاتا ہے تو نینا رونے لگتے ہیں
सुभान अल्लाह। गम पुर का सताता है, 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 तो नैना रोने लगते हैं, नैना रोने लगते हैं। गम पुर का सताता है तो नैना रोने लगते हैं, गम करबल सताता है तो नैना रोने लगते हैं। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, तो नैना रोने लगते हैं, नैना मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, तो नैना रोने लगते हैं, नैना रोने लगते हैं। और हमारे इमाम साहब आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी बिहार में नीतीश ने जो है समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर गई। तो ऐसा लगता है आपने मुझसे अपना समर्थन ले लिया। कल आपने नारा लगाकर मेरी सरकार बना दिया था, आज समर्थन खींच के सरकार गिरा दिया। बताइए, आप इधर आइए। गमपुर का सताता है, नैना रोने लगते हैं, नैना रोने लगते हैं। बहुत मजबूर हूँ आता। आखिरी शेर इंशाल्लाह कल सुनाऊंगा। इंशाल्लाह आप बेदारी का सबूत दीजिए, पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले, इंशाल्लाह फिर चलती महफिल होगी। गमपुर का सताता है, गमपुर का सताता है, तो नैना रोने लगते हैं, नैना रोने लगते हैं। और मुकर्रम आज़ाद, बहुत मजबूर हूँ आका। जो मदीना जाना चाहता भाई सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले, हुसैन के नाम पे सुभान अल्लाह बोले, अब्बास के नाम पे सुभान अल्लाह बोले, मोहम्मद के नाम पे सुभान अल्लाह बोले, अरे सैयदा सगीना के प्यास के नाम पे सुभान अल्लाह। आप लोग पकड़ के सुभान अल्लाह बोले, आप लोग पकड़ करे या हुसैन, 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 या हुसैन। बहुत मजबूर हुआ था, बहुत मजबूर हुआ था, बुला लो अब मदीने में, बुला लो अब मदीने में। बहुत मजबूर हुआ था, बहुत मजबूर हुआ था, बहुत मजबूर हुआ था, बुला लो अब मदीने में, बुला लो अब मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मजबूर हुआ था, बुला लो अब मदीने में, बहुत मजबूर हुआ था, बुला लो अब मदीने में। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, तो नैना रोने लगते हैं, नैना रोने लगते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आखिरी शेर, अरे सुभान अल्लाह, समर्थन मिल रहा है, सरकार बनेगी, बन गई, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर, कभी जब करबला किया, कभी जब करबला किया, कभी जब करबला किया, तुम्हें मैं खोया रहता हूँ, हाँ हाँ खोया रहता हूँ। कभी जब करबला की याद में मैं खोया रहता हूँ, कभी जब करबला की याद में मैं खोया रहता हूँ। कोई पानी पिलाता है, 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 तो नैना रोने लगते हैं, नैना रोने लगते हैं। कोई सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह क्या बात है।
اور کو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے کیا بات ہے نوٹ تو نوٹ ہے پھٹ کر بھی نہ چھوڑے واہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ انشاءاللہ جہاں سے بات ختم کی گئی تھی وہی سے بات کل شروع کی جائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں شہر الصلاة والسلام عليك يا قاسم نبي الله الصلاة والسلام عليك نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا جناب محمد